प्रबंधन समिति सदस्य और निदेशक ओम शांति रिट्रीट सेंटर मानेसर, डॉक्टर बनारसी लाल साहब, सचिव मेडिकल विंग ब्रह्म कुमारी एवं बहन कुमारी शिवानी दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक और प्रेरक वक्ता ब्रह्म कुमारी। साथ ही साथ उपस्थित अधिकारीगण और सभा में मौजूद सभी अतिथिगण, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद माननीय। अब हम निवेदन करना चाहेंगे मनिका जी से कि वे बहन कुमारी आशा दीदी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है। अब हम निवेदन करना चाहेंगे श्री भानु प्रताप जी से कि वे श्रीमती राधिका चक्रवर्ती जी, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का स्वागत पौधा भेंट कर करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद माननीय। अब हम निवेदन करना चाहेंगे श्री विशाल कुमार जी से कि वे डॉक्टर बनारसी लाल जी का स्वागत पौधा भेंट कर करें। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद माननीय। अब हम निवेदन करना चाहेंगे मनिका जी से कि वे बहन कुमारी शिवानी दीदी का स्वागत पौधा भेंट कर करें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है। Substance use, thereby preventing any resulting physical, psychosocial, and economic disabilities. As a nodal department for the drug demand reduction in the country, we are unwavering in our commitment to provide comprehensive support to all substance use dependents. Our focus extends to delivering essential de-addiction services, rehabilitation services, offering counseling through the National Helpline 14446 and our de-addiction centers, and conducting various training and capacity building programs for various stakeholders and service providers. I would like to take this opportunity to applaud the tremendous work undertaken by the Brahma Kumaris in support of Nasha Mukt Bharat Abhiyan. They have showcased these activities so far through a short video, and we are going to play that video for you all today. The array of activities undertaken by Brahma Kumaris reflect their dedicated and enthusiastic approach towards addressing this problem. These collaborative efforts, exemplified by Brahma Kumaris, serve as a united front towards facilitating the create a more compassionate and effective approach to addressing this pressurizing issue. As you all know, the Narcotics Anonymous and the Alcohol Anonymous follow a 12-step program, a part of which I would like to quote here. They say, "He is standing in his own light," meaning that people tend to shadow their own happiness by their mistaken thinking. So they say, let us learn to stand aside so that light can shine on us, and we all do. And I may not get in my own way, or secure my own clarity of thought, stumble over my own feet, block my own doorway to recovery. If I find that I am standing in my own light,
May I ask my higher power and my friends to show me a new vantage point? This is the 12-step program that states which is really very relevant in the de-addiction sector. Once again, on behalf of Sri Saurabh Garg, Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, and all the officers and the staff of the department, and the team Nasha Mukt Bharat Abhiyan, I extend a very warm welcome to all the sisters who are present today, to Asha Didi, who has graced this occasion, Sri Banarasi Lalji, who's always supporting Nasha Mukt Bharat Abhiyan from his medical wing, and above all Sri Shivani Behan, who all of us are very enthusiastic, very eagerly मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। तो डिपेंडेंसी फिजिकल, लेकिन एक और डीपर डिपेंडेंसी होती है, और वो है इमोशनल डिपेंडेंसी, जहाँ मेरा मन किसी सब्सटेंस पर, मेरा मन किसी वस्तु पर, मेरा मन किसी व्यक्ति पर, या मेरा मन किसी वैभव पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो पहले तो अपनी डिपेंडेंसी ढूंढ लो, क्योंकि दूसरों के लिए अभियान करना है, लेकिन दूसरों को मुक्त करने से पहले किसको मुक्त करना पड़ेगा। अब जब वीडियो देखा होगा तो सोचा होगा, नहीं हम तो अल्कोहल नहीं लेते, हम तो सिगरेट नहीं लेते, हम तो ड्रग्स नहीं लेते, हमने दूसरों की सेवा करनी है। वो तो हमने दूसरों की करनी ही है। एक होता है बाह्य रूप से फिजिकल सेवा करना, दूसरा होता है अपना अनुभव सुनाकर सेवा करना, लेकिन तीसरा एक बहुत पावरफुल वे ऑफ सेवा होता है डी एडिक्शन की वाइब्रेशन फैला देना, जिसको कहेंगे सशक्त भारत, एम्पावरमेंट। लेकिन उसके लिए मुझे किसी चीज़ से अपने आप को डी एडिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देन आई एम क्रिएटिंग अ पावरफुल माइंड। और हर एक जब अपने मन को शक्तिशाली बनाएगा, वो अपने आसपास के लोगों के मन को शक्तिशाली बनाएगा। और हम सबके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि आज से हम सिगरेट नहीं लेंगे, छोड़ दिया और कभी नहीं लिया। किसी ने संकल्प किया हम आज से इसको हाथ नहीं लगाएंगे, संकल्प किया, छोड़ दिया। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बार बार ट्राई कर रही है, बार बार हार खा रही है, बार बार ट्राई कर रही है, हार खा रही है, और खुद से ही हार जाते हैं, और फिर आगे ट्राई करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये निश्चित हो गया अपने आप से कि ये मुझसे होगा नहीं। तो इसके लिए जो सबसे सहज तरीका है कि उनसे वो छुड़ाओ ही नहीं, क्योंकि वो उनसे छूटेगा नहीं अभी। लेकिन उसको छुड़ाने की जगह उनको शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करें। और जैसे ही उनके मन को, इट्स लाइक अगर मैं स्टिक लेकर चल रही हूँ क्योंकि मैं फिजिकली वीक हूँ, अब अगर मुझसे कोई वो स्टिक छीनने की कोशिश करेगा तो मैंने घबरा के वो स्टिक पकड़ लेनी है, क्योंकि उस स्टिक के बिना तो मैं चल ही नहीं सकती, मैं गिर जाऊंगी। तो कोई भी चाहे, सारी दुनिया चाहे, मुझसे वो डंडा नहीं ले सकती है। लेकिन अगर कोई मेरा डंडा नहीं छीने मुझसे, लेकिन मुझे हेल्दी बनाने का पुरुषार्थ करे, तो जब मुझे हेल्थ बढ़ जाएगी तो डंडा तो मैंने खुद ही छोड़ देना है, मुझसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी तरह मन को, जो मन थोड़ा सा अपने आप को खुद शक्तिशाली नहीं बना पा रहा है, खुश नहीं रह पा रहा है, एक ऐसे समाज में जी रहा है जो कहता है टेंशन नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, जेलसी नॉर्मल है, ऐसे समाज में जीते जीते इन इमोशंस के साथ हमारे, जब हम सब हर एक ये करेगा तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो अपनी पूरी क्लास में अकेले रहने की हिम्मत रखेंगे कि सब लोग कुछ ले ले, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा घर का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है। सो वी रिक्वायर स्ट्रांग होम्स, और उसके लिए वी नीड पावरफुल पेरेंट्स। तो स्पिरिचुअलिटी और राजयोग मेडिटेशन उस पर करती है। और आज लाखों लाखों भाई बहनें हैं जो सेंटर पर आते हैं, अपनी एडिक्शंस के साथ आते हैं। एडिक्शंस छोड़ने के लिए नहीं आते हैं, मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में या एक आधे महीने में वो अपने आप छूट जाती है। सो दैट्स द ईजियर वे टू गिव अप एडिक्शन। और उससे फिर एक दो नहीं, हमारी सारी एडिक्शन ही धीरे धीरे सारी खत्म होने लगती हैं। तो अपने ऊपर, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, अपने ऑफिस को नो एंगर नो गॉसिप जोन बनाते हैं। आपके ऑफिस की एनर्जी इतनी ऊपर चली, शांति। अभी हम स्नेही शिवानी बहन के द्वारा बहुत सुंदर वक्तव्य, स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाएं ताकि एडिक्शंस, डिपेंडेंसीज इनसे मुक्त हो सकें।
मुझे इस मंच से ये बताते हुए अति गौरव का अनुभव होता है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक भी व्यक्ति, जिसमें 10 लाख परिवार, एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन का We feel that the locus of control is within us and not outside us. So I think आज का ये कार्यक्रम वैसे एक अभियान के साथ जुड़ा है, लेकिन सबकी बात सुन के यही लग रहा है कि जो बेसिक थॉट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इस मंत्रालय का विजन के साथ जुड़ा हुआ है. And I would say even more than that, it is the core philosophy of ensuring that India becomes a developed nation by 2047, which is the dream, which is the mandate, which is the vision, which our Honorable Prime Minister has also set out for all of us. तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्म कुमारी संगठन का और जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ इस अभियान में जुड़ी हैं. बट ये केवल एक अभियान के साथ नहीं है. आई थिंक इट इज़ what we want to achieve as a nation, as a people, that itself is the core of what we are discussing today. मैं आप सब लोग जो आए हैं आज, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं यही आशा करूँगा कि आगामी दिनों में भी इस अभियान में, हमारे अन्य कार्यक्रम में भी आप सबका योगदान रहेगा और जो हमारा मैंडेट है, विजन है विकसित भारत, उस और हम सबका मिलके एक जुड़ के हमारा प्रयास रहेगा और हम सब आगे इसी प्रयास के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे. थैंक यू. विभिन्न प्रकार के हैं. जब इस बारे में बात हो रही थी तो मुझे यही लगा कि हमारा मंत्रालय का जो नाम भी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता, और जो मिशन है, मैंडेट है हमारे मंत्रालय का, सामाजिक न्याय और जिन लोगों को भी कमी है, डिप्राइव्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, उनकी अधिकारिता, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड. ये दोनों पहलू, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एंड एम्पावरमेंट ऑफ द मोस्ट